ہم سب ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس کی تکلیفوں کا اندازہ شاید ہمارے وہم و گمان میں نہ تھا۔ کووڈ کی اس وبا نے کئی اپنوں کو ہم سے جدا کر دیا۔ زندگی رک سی گئی ہے۔ میں ان تمام حضرات کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے یہ رنج دوسروں سے زیادہ برداشت کیا ہے۔ مجھے ساتھ ہی اس بات کی بے حد خوشی ہے کہ اردو اکیڈمی مدھیہ پردیش نے ایک ایسے پروگرام کا انعقاد کیا ہے جو ہمارے منتشر ذہنوں کو یکجا کر دے گا۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ ہم رنج اٹھائیں، یہ ٹھیک نہیں کہ کوئی بیر بھی ہو۔ تاریخ کے اوراق میں ایک ایسی ہستی کا ذکر ملتا ہے جس نے اپنے وقت میں ہماری مشترکہ تہذیب، ہمارے میل جول کو پرواز دی۔ میں بات کر رہا ہوں شاہجہاں کے بڑے بیٹے دارا شکوہ کی۔ سیاست میں جیتنے والوں کی بہت بات ہوتی ہے، بہت نام ہوتا ہے، مگر انسانیت کو چراغاں کرنے والوں کا ذکر وقت میں مسخ ہو کر رہ جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ تاریخ ہماری کچھ اس طرح کی ہے۔ یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ اس پروگرام کی صدارت کر رہے ہیں کینیڈا سے جناب طارق عابدی صاحب، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ چنڈی گڑھ سے ہمارے مہمان خصوصی ہیں ڈاکٹر نریش صاحب، دلی سے جڑے ہیں ڈاکٹر سید اختر حسین صاحب، اندور سے تشریف فرما ہیں ڈاکٹر عزیز عرفان صاحب، اور بھوپال سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مہتاب عالم صاحب۔ میں آپ سب صاحبان کا استقبال کرتا ہوں۔ میں سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں اردو اکیڈمی مدھیہ پردیش کی ڈائریکٹر ڈاکٹر نصرت مہدی صاحبہ کو، جن کی بصیرت اس پروگرام کی بنیاد بنی۔ نصرت میم آپ کا میوٹ پہ ہے۔ I'm sorry. Yes. ناظرین آداب، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی محکمہ ثقافت کا یہ ویبینار، ابھی تھوڑی سی تمہید عامر نے آپ کے سامنے باندھی ہے، بتایا ہے دارا شکوہ کے بارے میں کہ آج کے ہمارے ویبینار کا موضوع دارا شکوہ کی شخصیت، ان کی حیات و خدمات ہیں۔ مورخین نے ان کو بد نصیب شہزادہ ضرور کہا کیونکہ انہیں ہندوستان کی حکومت نہیں ملی، لیکن کیا یہ کم ہے کہ وہ ہمارے دلوں پر حکومت آج بھی کرتے ہیں؟ دلوں کی حکومت بڑی حکومت ہوتی ہے۔ وہ ایک صوفی صفت انسان، وہ ایک انسانیت سے محبت کرنے والا شخص، وہ شہزادہ، وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں بات اپنی آگے بڑھاؤں، میں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب جو کینیڈا سے تشریف رکھتے ہیں اور آج کے پروگرام کی صدارت کر رہے ہیں، ان کا خیر مقدم کر رہی ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر مہتاب عالم بھوپال سے ہیں، جن کا نام ابھی آپ نے سنا، اور باقی شرکا اختر، ہمارے عزیز عرفان صاحب، پروفیسر اختر صاحب، اور ابھی بیچ میں اور بھی ایک دو لوگوں کے نام میں آپ کو بتاتی جاؤں گی جیسے جیسے شامل ہوتے جائیں گے۔ اب میں مقاصد کی طرف آتی ہوں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اردو اکیڈمی اور دارا شکوہ اس کا کیا تعلق ہے، تو میں آپ کو واضح کر دیتی ہوں کہ دارا شکوہ صرف ایک سیاسی شخصیت نہیں تھی، بلکہ میں کہوں وہ سیاسی شخصیت تھی ہی نہیں، وہ پوری طرح سے ادبی اور علمی شخصیت تھی۔ انہوں نے بے شمار کتابیں فارسی سے سنسکرت میں اور سنسکرت سے فارسی میں ان کا ترجمہ کیا، اور ہمارے پاس بے شمار ادب ہے جس کو ہم اردو میں کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ، اور ہمارے ریسرچ اسکالرس، ہمارے طلبہ طالبات اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک مختلف مذاہب کے درمیان، مختلف ادب کے درمیان جو تقابلی ایک مطالعہ تھا دارا شکوہ کا، وہ مجھے نہیں لگتا اس سے پہلے اس کا کبھی رواج تھا۔ دارا شکوہ سے یہ روایت شروع ہوئی اور بعد میں لوگوں نے اس کو اپنایا۔ بعد میں ریسرچ اسکالرس کے کام یہ بہت آتا رہا کہ کمپیریٹیو اسٹڈی، تلناتمک ادھین، چاہے وہ فارسی سے سنسکرت کا ہو، فارسی سے اردو کا ہو، ہندی سے اردو کا ہو، یا مختلف زبانوں کا ہو، یہ سب دارا شکوہ سے، جہاں تک میرا محدود علم ہے، اس کی شروعات وہاں سے ہوئی۔ ہم ابھی ہمارے بہت سے مقررین ہیں جو دارا شکوہ پہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہماری جو منتری ہیں، سنسکرتی منتری محترمہ اوشا ٹھاکر جی، وہ خود ایک بہت بڑی چنتک، بہت اچھی ادبی شخصیت اور بہت ایک براڈ ویژن رکھنے والی خاتون ہیں۔ میں اس موقع پر
उनको मदऊ करना चाहूँगी कि वो हमारी हौसला अफजाई भी फरमाएं और हमारी रहनुमाई भी फरमाएं कि हम दारा शिकोह को किस रूप में, किस तरह से अपनी अकादमी का और बाकी, जैसे कि हमारे मुकर्रिरीन में बहुत से लोगों ने बात की कि निसाब का भी हिस्सा अगर बनाया जा सके उनकी शख्सियत को, तो किस तरह किया जा सके। आगे उनसे गुफ्तगू जारी रहेगी। अभी हम उनका पैगाम सुनते हैं। मोहतरमा उषा ठाकुर जी, वजीर महकमा सकाफत। 8/6/2021 उर्दू अकादमी के इस सार्थक प्रयास को मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ। मैं बधाई देती हूँ उर्दू अकादमी के निदेशक डॉक्टर नुसरत मेहंदी जी को, जिन्होंने बहुत ही समसामयिक विषय दारा शिकोह भारतीय संस्कृति के वाहक विषय पर वर्चुअल सेमिनार आयोजित किया। हम सब जानते हैं दारा शिकोह ने श्रीमद् भागवत गीता, योग वाशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया था। उन्होंने 52 उपनिषदों का सिर्रे अकबर नामक ग्रंथ फारसी में लिखा। समुद्र संगम नाम से संस्कृत में उन्होंने रचनाएं भी की। उनका ये उदात्त जीवन चरित्र भारतीय परिवेश को सामाजिक सांस्कृतिक समरसता की ओर अग्रसर करेगा। बहुत शुभकामना, बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू नुसरत साहिबा। और हमने पैगाम सुना मंत्री जी का। बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत पैगाम का। मैंने ये समझा कि गोया ये भी मेरे दिल में था। बहुत कम अल्फाज में आपने बहुत खूबसूरती से एका और यकजहती का पैगाम को हम सब तक पहुंचाया, और थैंक यू फॉर दैट। मैं आप सबको हमारे मुकर्रिरीन से मिलवाना चाहूँगा। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ डॉक्टर मेहताब आलम के साथ। उनकी पैदाइश 1972 में जौनपुर यूपी में हुई। आलम साहब ने उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी हासिल की। पॉलिटिकल थियरी, उर्दू अदब और टेलीविजन इंटरव्यूज में उनका खास काम है। मुल्क के मोतबर उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी अखबारात और रसाइल में उनको 650 से जायद मज़ामीन की इशाअत उनकी हो चुकी है। उनको कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जैसे कि मैन ऑफ द ईयर अवार्ड जामिया अलीगढ़ की तरफ से, यंग जर्नलिस्ट अवार्ड अलीगढ़ रोटरी क्लब की तरफ से, नवाब सिद्दीक हसन खान अवार्ड खुद उर्दू अकादमी मध्य प्रदेश की तरफ से, और बेशुमार इदारों की तरफ से दीगर अवार्ड्स। मैं डॉक्टर मेहताब आलम साहब को मदऊ करना चाहूंगा कि इस मौजू पे कुछ रोशनी डालें। सामईन किराम, आज का दिन मेरे लिए खास है, और खास इसलिए कि आज के दिन जो गुफ्तगू हो रही है वो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब और मुश्तरका तहजीब के हवाले से मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी ने आज का जो उन्वान तय किया है वो उन्वान है दारा शिकोह, हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब के अलमबरदार। यकीनन दारा शिकोह हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब का अलमबरदार था। हालांकि हमारे मुरखिन ने दारा शिकोह पर जब भी गुफ्तगू की है तो गुफ्तगू का आगाज या गुफ्तगू का जो महवर रहा है वो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होने वाले मार्के को बनाकर रखा। इस मार्के को इस कसरत से बयान किया गया कि दारा शिकोह की इल्मी फतूहात वो पीछे रह गई। मुझे खुशी इस बात की है कि सदियां गुजरने के बाद दारा शिकोह ने इल्म को लेकर, अदब को लेकर, फिक्र की बालिदगी को लेकर जो नकुश छोड़े थे उस पर उर्दू अकेडमी ने कदम उठाया है, और एक ऐसा कदम जिसमें इल्म के हवाले से, इल्म के नए गोशों के हवाले से गुफ्तगू, और उसमें न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर के उस तमाम लोग शिरकत कर रहे हैं। खासतौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा डॉक्टर नरेश साहब का, डॉक्टर तकियाती साहब का, प्रोफेसर अख्तर हुसैन साहब का, डॉक्टर अजीज इरफान, डॉक्टर वसीम इरफान, वसीम जो है इफ्तिखार का जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि वो तमाम लोग हैं जो अहले नज़र हैं, जो ज़बान व बयान भी जानते हैं, जो तहकीक के मिजाज को भी जानते हैं।
और इस गुफ्तगू से यकीनन वो पहले निकल कर सामने आएंगे कि दारा शिको जो तलवार का धनी भी था, तो उसने कलम में जो जादू बयानी की है अपने तजर्बे से, और वो तजर्बात जो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब के आलमबरदार थे, उसको उसने अपनी कलम की जादू बयानी से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के गोशे गोशे में पहुंचाया। मतलब सामीन, जब हम दारा शिको की बात करते हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि दारा शिको शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था। शाहजहां उसे बहुत पसंद करता था और शाहजहां उसे हिंदुस्तान के वारिस के तौर पर देखना भी चाहता था। शाहजहां ने बाद महफिलों में इसका ऐलान भी किया और उसे बुलंद इकबाल भी कहा। ये अलग बात है कि दारा को हिंदुस्तान का तख्त तो नहीं मिला, लेकिन दारा ने अपने दिल से, अपनी तहरीरों से, अपनी तहकीक से जो गोशे वाक़िए थे, उससे लोगों के दिलों पर हुकूमत करने में कामयाब हो गया। दारा जमीन पर तो हुकूमत नहीं कर सका, लेकिन दिलों पर हुकूमत करने में कामयाब रहा। और ये इससे बड़ी कामयाबी और क्या होगी कि सदियां गुजरने के बाद आज इल्मी हवालों से दारा शिको पर गुफ्तगू हो रही है। दारा ने यह भी बता दिया था कि शिद्दत पसंदी किसी भी अहद में की जाए, वक्ती तौर पर तो हुकूमत हासिल की जा सकती है, लेकिन इसके दूरदर्श नताइज बरामद नहीं होते। दारा ने हिंदुस्तान को इत्तेदाल पसंदी का जो नजरिया दिया था, वो नजरिया न सिर्फ आज उसकी मेहनत बढ़ती जा रही है, बल्कि आने वाले वक्तों के लिए उससे नए नकुश मुरतब हो रहे हैं, नए नकुश सामने आ रहे हैं। दारा को जब हम पढ़ते हैं, और यकीन जानिए कि दारा को, जैसा कि मैंने कहा कि दारा को जब हम पढ़ते हैं और दारा को पढ़ने से ये मालूम होता है कि दारा ने सिर्फ फारसी जबान पर ही जो इक्तफा नहीं किया, वो अरबी जबान भी जानता, फारसी जबान का आलिम, और इसके साथ साथ हिंदुस्तान की जो इलाकाई जबान और इलाकाई बोलियों के साथ साथ वो संस्कृत का एक बड़ा आलिम था। जब शाहजहां ने हिंदुस्तान की वसी और अजीज मुल्क को अपने 4 बच्चों में तकसीम किया, तो दारा के हिस्से में इलाहाबाद, पंजाब, मुल्तान, बिहार की अमलदारी उसके हिस्से में आई। और जब वो इलाहाबाद गया, तब आप देखिए कि दारा ने, वो पहला शहजादा था जिसे बोरिया नशीनों के साथ बैठने में, खाक नशीनों के साथ बैठने में कोई सी उकताहट, कोई कबाहत नहीं हुई, बल्कि उसने फख्र महसूस किया। इसकी वजह यह है कि दारा की जब विलादत जो होती है, दारा की विलादत हिंदुस्तान के उस खित्ते में हुई जहां पर एक तरफ वो तारीखी शहर है जिसे हम अजमेर कहते हैं। अजमेर का जब जिक्र होता है तो हम तमाम लोग जानते हैं कि वो तारीखी सरजमीन है जहां पर सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मसनद रुश्द हिदायत बिछाया था और यहीं से सुलह कुल का पैगाम दिया था। तो दारा की खाक में, दारा की सरिश्त में जो है, में जो खमीर में जो मिट्टी शामिल है, एक तरफ अजमेर और दूसरी तरफ जो हमें देखते हैं कि पुष्कर है जो ब्रह्मा जी का स्थान है। तो दारा ने अजमेर की खाक पुष्कर का पुष्प लिया और उससे मोहब्बत का एक गुलाब उगाया, और मोहब्बत का वो गुलाब जिसे हिंदुस्तान के सुलह कुल के लिए जुज़्व लाजिम करार दिया। और दारा में एक खास बात ये भी थी कि दारा जहां पर इस्लाम की बात करता है, तसव्वुफ की बात करता है, वहदतुल वजूद की बात करता है, वहीं पर जो है वो यहाँ पर ऋषि मुनियों की भी बात करता है। दारा से पहले बहुत सारे मुसन्निफीन गुजरे जिन्होंने उपनिषद पे काम किया, लेकिन दारा वो पहला शख्स है जिसने उपनिषद के आलमी आफाकी पैगाम को फारसी में मुंतकिल कर किया, और जब यही आफाकी पैगाम हिंदुस्तान से बाहर गया, उसका लातिनी जबान, फ्रेंच जबान, अंग्रेजी जबान और दुनिया की मुख्तलिफ जबानों में जब तर्जुमा होगा तो दुनिया को मालूम हो सका कि उपनिषद का पैगाम क्या है, उसकी आफाकियत क्या है और उसकी रूहानियत का पैगाम जो है उसको दुनिया की कितनी जरूरत है। दारा से पहले काम लोगों ने किया, दारा ने ही काम किया था। और दारा की खूबी ये भी थी कि दारा हिंदू मजहब और इस्लाम मजहब के बीच दैरो हरम की दीवार से अलग हटकर इखलाकी, इंसानी कदरों की बुनियाद पर एक नया तरीके का हिंदुस्तान देखना चाहता था। हालांकि बहुत सारे लोगों ने उस वक्त उसके नजरियों को नहीं पसंद किया, लेकिन वक्त की गर्द में जो नजरिया तब गया था, आज उसे हुकूमत वक्त की बात करें, मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी की बात करें, इससे पहले भी बहुत सारी अकेडमियों ने ये कोशिश की कि दारा के उस पैगाम को, जिसे हम इत्तेदाल पसंद नजरिया के नाम से जानते हैं, उसको मंजर आम पर लाया जाए,
मैं मध्य प्रदेश एकेडमी को जहाँ इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ, वहीं पर मध्य प्रदेश हुकूमत से ये गुजारिश भी करना चाहूँगा, साहित्य अकेडमी के जिम्मेदारान से भी गुजारिश करूँगा कि दारा के नज़रिए को, उपनिषद पर जो उसने काम किया है, उसने सकीनतुल औलिया पे जो काम किया है, मजमुल बहरैन के नाम से जो उसने काम किया है, उपनिषद का जो तर्जुमा उसने सिर अकबर के नाम से किया है, इसको निसाब का हिस्सा बनाया जाए ताकि दुनिया को मालूम हो सके कि मुस्लिम फनकारों ने उपनिषद पे जो काम किया है वो कितना अहम है और उसकी आज के ज़माने में कितनी अहमियत है। मैं दारा को इसलिए भी पसंद करता हूँ कि दारा के इस्लामी तालीमात से अलग हटकर कि दारा ने इल्म के जो मुख्तलिफ शोबे में जो गुफ्तगू की है, जो काम किया है। अब आप सोचिए कि वो ज़माना जो मुनाजरे का ज़माना था, वो ज़माना जो मुजादले का ज़माना था, दारा ने उस ज़माने में मुकालमे के हुनर से मुकालमे को आम करके दुनिया को बताया कि इससे बाहर भी एक दुनिया है जहाँ पर मुकालमा किया जाना चाहिए। और आज मुकालमे की जब बात करते हैं, जब मुख्तलिफ मज़हब के बीच, लोगों के इल्मी अफकार के बीच, दानिश्वरों के बीच मुकालमा होगा तो हम न सिर्फ एक दूसरे के इल्म की, एक दूसरे के मजहब की, अफकार की, एक दूसरे जबान में जो उलूम लिखा जा रहा है उससे मुतारिफ होंगे, बल्कि हमें ये भी मालूम होगा कि उनके यहाँ वो तमाम पहलू क्या है और तहकीक के पहलू क्या है और अच्छी बातें क्या है जिसको दूसरे मज़ाहिब में मुंतकिल किया जाना चाहिए। दारा ने तर्जुमे के जरिए जो काम किया था, जैसा कि मैंने कहा कि उसकी आफाकियत और इसकी इफादियत में इजाफा होता जा रहा है। और दारा इसलिए भी मैं पसंद करता हूँ कि दारा ने उस जमाने में तहकीक जो है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, जिसको उसने डेवलप किया था और आज भी उसकी अहमियत और इफादियत बढ़ती जा रही है। दारा के यहाँ ये तमाम चीजें क्यों पैदा हुई, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि तो शहजादा था और एक ऐसा शहजादा जहां पर तमाम चीजें जिसको तलब करता हाजिर हो जाते। लेकिन दारा ने तलब नहीं किया, बल्कि इल्म की तलब में वो बोरिया नशीनों के पास गया। इस समय अगर मैं बात करूं कि जो है हज़रत मियां मीर, मुल्ला शाह बदख्शी, सरमद, बाबा लाल दास, बैरागी, ये तमाम लोग हैं जिन्होंने दारा की जिंदगी के महवर के धारे को बदलने में बड़ा किरदार अदा किया। और इस जिंदगी की इस धारे को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान तो मुस्तक़िल तहजीब का मुल्क है। हिंदुस्तान तो वो मुल्क है कि जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा जबानों के बोलने वाले लोग हैं, जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा जबानों में इल्म जो है लिखा जा रहा है और इससे पहले भी लिखा गया। मुख्तलिफ तहजीबों के लोग, मुख्तलिफ जबानों के लोग, और फिर इतनी जबानों के बीच में जो अदब तख्लीक किया जा रहा है, उसमें जो लोगों के बीच मोहब्बत का जो जज्बा है उसको आम करने की जरूरत है। जब हम इन तमाम पहलुओं पर बात करते हैं तो मुझे कह लेने दीजिए कि गालिब ने तो उस जमाने में कहा था कि ईमा मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ, ईमा मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। तो हमें दारा को पढ़ना है अगर, तो दैरो हरम, काबा और कलीसा की बहस से आगे हटकर उसकी इल्मियत पर, उसकी इल्मी गुफ्तगू पर, उस पर इल्म के जरिया जो उसने काम किया है, उसने जो इल्मी फतूहात जो की हैं, उस पर गुफ्तगू करने की जरूरत है। जब हम ये गुफ्तगू करेंगे तो नए गोशे जो मुनव्वर होंगे तो हम ये कह सकेंगे, सदरंग ये फजा मेरे हिंदुस्तान की है, खुशबू इसी में देखिए सारे जहां की है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आलम साहब। दारा शिकोह की जिंदगी का एक खाका भी आपने पेश किया और आपने खास तौर से उन पहलुओं को उजागर किया जिनसे खास तौर से मेरे एक सेकंड, मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। जी जी जरूर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, मैं मेहताब आलम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि यकीनन वो बातें वो निकाल कर लाए हैं अपनी गुफ्तगू में कि जिनकी हमें ज़रूरत है इस वक्त। और सबसे अहम बात जो उन्होंने कही है कि मध्य प्रदेश हुकूमत से ये मुतालबा किया जाए कि दारा शिकोह की शख्सियत पर को निसाब में शामिल किया जाए। तो आप खुद एक बड़े चैनल यानी न्यूज़ 18 उर्दू से जुड़े हुए हैं, आपके साथ मिलकर हम ये कोशिश करेंगे और आपका मुतालबा और मशवरा हुकूमत तक पहुँचाएंगे कि इसे निसाब का हिस्सा बनाया जाए। बहुत शुक्रिया। जी आमिर। जी 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी बात उन्होंने जैसे ये बात कही भी कि खासतौर से हम जो तालिब इल्म हैं उनको इस बात का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मौजू मिलता है दारा शिकोह कि हम उस पर रिसर्च कर सकें और
ہم اپنی مشترکہ تہذیب جو ہے، ہماری جو ملی جلی تہذیب ہے، اس کو آگے بڑھا سکیں. اور یقیناً دارا شکوہ کو تخت نہیں مل سکا، لیکن تخت کی جو وراثت ہوتی ہے وہ کم پڑ جاتی ہے، اور محبت اور علم کی وراثت جو ہے وہ آگے نکل جاتی ہے. آئیے ہمارے دوسرے مقرر کی طرف چلتے ہیں. میں انہی کے شہر اور ان کے دوست راحت اندوری صاحب کے شعر سے ان کو دعوت دینا چاہوں گا کہ یہ ضروری ہے کہ آنکھوں کا بھرم قائم رہے. یہ ضروری ہے کہ آنکھوں کا بھرم قائم رہے، نیند رکھو یا نہ رکھو، خواب معیاری رکھو. عزیز عرفان صاحب نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے کیا، اور بچپن کے دوست راحت اندوری شاعر اور شخص کے موضوع پر پی ایچ ڈی کی سند حاصل کی. آپ نے عرب ممالک میں تقریباً 21 سال انگریزی زبان کی تعلیم دی. خاکوں اور مضامین پر آپ کی کتابیں ابھی زیر طبع ہیں. آپ کے مضامین باوقار ادبی رسائل اور جرائد میں پابندی سے شائع ہوتے رہے ہیں. میں ڈاکٹر عزیز عرفان صاحب کو زحمت کلام دینا چاہوں گا کہ وہ آئیں اور ہمیں اس معاملے سے کچھ آشنا کریں. تھینک یو. آداب عرض. جناب صدر، اس ویبنار میں میرے شرکا اور مشاہدین اکرام، آداب. مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی مبارکباد کی مستحق ہے کہ اس نے ویبنار کے لیے تاریخ کے ایک بہت اہم کردار کو منتخب کیا ہے. اس سے ہمارے وطن عزیز میں باہمی رفاقت، تفاہم کا ماحول رہ پائے گا. دارا شکوہ پر میرے اس رائٹ اپ کا عنوان ہے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے. ہندو مت کی مقدس کتابوں سے شغف، عالموں کو عزت و توقیر کی نظر سے دیکھنا مغلوں سے پہلے سلاطین دہلی کا عام رویہ رہا ہے. ہندوستان کے مذہب، زبان، علوم و فنون، رسم و رواج کا احترام ان ریاستوں میں عام تھا. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کی فضیلت نے مذہبی حیثیت اختیار کر لی تھی. حدیث و تفسیر کی کتابوں تک میں متعدد روایات درج کر دی گئی تھیں. مولوی غلام علی آزاد بلگرامی نے اپنی کتاب غزالان الہند کے دیباچے میں کتاب کی تصنیف کی غرض یوں بیان کی ہے، کوٹ، ہندوستان جنت نشان کا ذکر تفسیر و احادیث کی کتابوں میں رقم ہے، انکوٹ. آگے مولوی آزاد نے کچھ روایتوں اور احادیث کی نشاندہی بھی کی ہے، اگرچہ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ حدیثیں اور روایات قطعاً جعلی اور غیر معتبر ہیں. لیکن ان کی شمولیت سے یہ بات تو ظاہر ہے کہ ہندوستان کے تہذیبی اور علمی برتری کے بارے میں مسلمانوں کا کیا خیال تھا، نیز اس ملک کی تہذیب و ثقافت کی عظمت کا احساس اور اعتراف مسلمانوں کو کس حد تک تھا. آزاد بلگرامی نے اپنے مذکورہ کتاب میں شیخ علی رومی کی کتاب محاضرہ سے یہ فقرہ نقل کیا ہے، سب سے پہلے جس سرزمین میں کتابیں تصنیف کی گئیں اور جہاں حکمت کا چشمہ نکلا وہ ہندوستان ہے، انکوٹ. تاریخ فیروز شاہی میں مذکور ہے کہ سلطان فیروز شاہ سنسکرت کی علمی کتب کے ترجمے پر مترجم کو انعام و اکرام اور منصب اور جاگیروں سے نوازتا تھا. یہاں اس امر کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ فیروز شاہ اکبر کی طرح دنیا ساز اور سست عقیدہ نہیں، بلکہ ٹھیٹھ مسلمان اور مذہب کا سختی سے پابند تھا. امیر خسرو نے اپنے کلام میں متعدد جگہ ہندوؤں اور ہندوستان کی ملی فضیلت بیان کی ہے. انہوں نے ہندو مت کا اسلام کے علاوہ اور تمام مذاہب سے مقابلہ کیا اور اسے ترجیح دی. یہ ترجیحات بڑی دلچسپ اور باوزن ہیں. مثلاً ثانوی فرقہ خدا کو دو مانتا ہے، بخلاف اس کے ہندو ایک مانتے ہیں. عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، ہندو اس قسم کے عقائد کے قائل نہیں. فرقہ مجسمہ خدا کو صاحب جسم مانتا ہے، لیکن ہندو ایسا اعتقاد نہیں رکھتے. ستارہ پرست 7 خدا مانتے ہیں، ہندوؤں کا یہ عقیدہ بھی نہیں. پارسی نور و ظلمت 2 خدا مانتے ہیں، لیکن ہندو اس خیال سے بری ہیں. اب مغل بادشاہوں کا طرز عمل دیکھیے. دارا شکوہ جن کا وارث تھا، بابر اور ہمایوں کو خدا نے مہلت نہ دی، لیکن اکبر کی مذہبی رواداری بے مثال تھی. جہانگیر جو اپنے باپ اکبر کی طرح دنیا دار اور ضعیف العقیدہ نہیں تھا، ہندو مت کے عالموں، پنڈتوں اور سناسیوں
का कमाल एहतराम करता था और जंगलों और खों का दुश्वार गुजार रास्ता तय करके उनके पास जाता और 6-6 घड़ियां उनके सोबत में बैठकर हिंदू मजहब की तालीमात सीखता। वो जब भी किसी को मुरीद करता, सलातीन तैमूरिया लोगों को मुरीद भी करते थे और उनसे बैत भी लेते थे, तो मुरीद से ये इकरार भी लेता था कि किसी मजहब व मिल्लत से अदावत नहीं रखेगा। वली अहदी और तख्त के हुसूल के लिए मुखालिफतें, लड़ाइयाँ और साजिशें नागुज़ीर हैं। दारा और औरंगज़ेब को भी ये रिवायत मकरूहा विरासत में मिली थी। हुमायूं को कामरान और मिर्ज़ा हिंदाल से, अकबर को मिर्ज़ा हकीम से, जहांगीर को खुसरो से, शाहजहां को शहरियार और परवेज से मज़ाहमत का सामना करना पड़ा था। शाहजहां के वारिसों में तख्त सुल्तानी के लिए जिस पैमाने पर खूंरेजी हुई वैसी उनके पेशरुओं में नज़र नहीं आती। उसकी वजह यह रही कि सब के सब दावेदार शहजादे बहुत ताकतवर थे। दारा शिको, शुजा, औरंगज़ेब और मुराद के पास मुख्तलिफ सूबों की गवर्नरी थी, मालो मता थी, फौज थी, क्योंकि उनका बाप शाहजहां का दौर हुकूमत मुगलिया सल्तनत का ज़र्री और खुशहाल तरीन दौर था और 4 सू गोया खून बरस रहा था। चारों शहजादों में औरंगज़ेब सबसे तेज़, होशियार, जरी और जंगी हिकमत अमली वज़ा करने में माहिर था। तख्त नशीनी की जंग में फतह हासिल करने के लिए उसने हर वो हरबा इस्तेमाल किया जो उसे सही लगा। इसमें अखलाकियात, मजहब, जायज़ नाजायज़ होने का सवाल नहीं। उसने अपने भाइयों और ज़रूरत पड़ी तो बाप तक से रहम व इंसाफ का मामला नहीं किया कि बाप दारा शिकोह का हमदर्द और तरफदार था। औरंगज़ेब का शहंशाह हिंदुस्तान बनना हिंदुस्तान की तारीख का एक अहम मोड़ है कि सलातीन दिल्ली और मुग़लों के सेकुलर हिंदुस्तान का ताना बाना यहीं से कमज़ोर होना शुरू हो गया था। दारा शिकोह को मजहबी रवादारी वर्षे में मिली थी। उसके अजदाद आला तरीन इंसानी अक़दार और मेल व मोहब्बत के पैरोकार थे। तारीख़ इस तरह की मिसालों से भरी पड़ी है। बाबर का हुमायूं को गाँव कुशी के लिए मना करना कि हिंदू इस जानवर को मुकद्दस समझता और पूछता है। रानी कर्णावती का एक राजपूत राजा से परेशान होकर हुमायूं को राखी भेजना और मदद तलब करना और हुमायूं का फौरन राजपूत बहन की मदद को दौड़ना। अकबर ज़ाहिर रवादारी की शानदार रिवायत का सबसे मजबूत किरदार था ही। दारा के दादा जहांगीर का हिंदू आलिमों और हिंदू मत के ग्रंथों से मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता, शाहजहां का इन पाकीज़ा रिवायतों को जारी रखकर मज़ीद तक़वियत बख्शना। दारा के सामने इस दरख्शां रिवायत का एक अजीम सिलसिला था और वह इसका सही मानों में नुमाइंदा था। इसमें अपने अजदाद की वसीउल मशरबी, मजहबी रवादारी, बाहम एहतराम और इल्म आगही के लिए तड़प और प्यास थी। ये सब तसव्वुफ़ के मुताले और सूफियों की सोबतों की बरकतें थीं। शहजादा दारा शिकोह अलावा अपने फ़राइज़ मनसबी के वेदांत और दूसरे हिंदू मजहबी ग्रंथों का मुताला गहराई के साथ करता और उसने इतना इल्म और असर हासिल कर लिया कि अपने शिदों का तर्जुमा फ़ारसी ज़बान में किया। वो तबीयत का करीमुन नफ्स था, सुलह जोई पर यकीन रखता था, अरबी, फ़ारसी और संस्कृत ज़बानों को आलिम था और कई रिसालों और किताबों का मुसन्निफ़ था जिसमें अक्सर तसव्वुफ़ के मुतालिक थीं। इस तरह वो मजहबी रवादारी की इस अज़ीमुश्शान रिवायत का अमीन, अलमबरदार और सच्चा वारिस था। मेरे नज़दीक दारा शिकोह की शिकस्त तब तक तकरीबन 600 साला मुस्लिम हुकूमतों में परवान चढ़ी सुलह कुल की शिकस्त थी। हिंदुस्तानी अवाम को यह एहसास ज़ियां इसी रोज़ हो गया था जब दारा शिकोह को शिकस्त के बाद कैद करके दिल्ली लाया गया। अवाम मुगलिया तख्त व ताज के वारिस की ये दुर्गत देखकर सख्त मुश्तइल हो गए और बड़ी तादाद में जमा होकर औरंगज़ेब के फ़ौजी अफसरों पर ईंट पत्थरों की बारिश कर दी, गालियां दी और उन पर नजासत तक फेंकी गई। कोतवाल शहर ने बमुश्किल इन बिखरे अवाम को काबू किया। मेरा ज़ाती ख्याल है कि दारा शिकोह का हिंदुस्तान औरंगज़ेब के हिंदुस्तान से मुख्तलिफ नहीं बेहतर होता। इस अजीम मुल्क की मिट्टी में मजहबी रवादारी गुंधी हुई है, शिद्दत पसंदी की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं। औरंगज़ेब काश यहाँ के अवाम की नब्ज़ और तारीख़ी रिवायत को समझता तो शानदार मुगलिया सल्तनत का वो हश्र नहीं होता कि जो हुआ। शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया अजीज इरफान साहब, यकीनन आपकी बातों से सभी मुत्तफिक होंगे और ख़ास तौर से इस जुमले से कि अगर औरंगज़ेब की जगह दारा शिकोह की हुकूमत होती तो और बेहतर हुकूमत होती उस वक्त की। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे डॉक्टर मेहताब आलम ने फरमाया अपने गुफ्तगू में कि दारा शिकोह की हुकूमत दिलों पर रहेगी, आज भी है और आगे भी रहेगी। जी आमिर। जी शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत अच्छी तसनीफ आपने पढ़ के सुनाई अजीज इरफान साहब ने, और एक बाकायदा एक हिस्ट्री का लेसन कवर कर लिया, और फिर अपना केस भी प्रेजेंट किया कि कैसे दारा शिकोह की जो हुकूमत रहती अगर होती। ये सवाल अक्सर किया जाता है हिस्ट्री लेसन्स में कि अगर दारा शिकोह की हुकूमत होती तो क्या होता, और वाकई बहुत अच्छा उन्होंने उसको सामने रखा। मैं इसको इस तरह कहूँगा कि एक शहजादे को मुकम्मल बादशाही की दलील बख्शी है आपने। अब्दुल हमीद आदम साहब का शेर याद आता है कि हर जगह हर शहर हर इक़लीम में, हर जगह हर शहर हर इक़लीम में जिक्र है उसका जो नाम मौजूद है। तो ये वो बात है जो आपने रखी। हम अपने अगले मुकर्रर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे अगले मेहमान हैं डॉक्टर सैयद अख्तर हुसैन साहब, जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर फारसी एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़ के प्रोफेसर रहे हैं, बल्कि हैं अभी। अपनी तालीमी करियर के दौरान आपने हिंदुस्तान और बैरून मुल्क फ़ारसी उलूम के मुमताज़ जराइद में मज़ामीन शाया किए, और आपने 2 किताबें भी शाया की। हाल ही में आपने IIC के ज़रिए शाया होने वाली अरेबियन नाइट्स के बारे में एक जिल्द मज़मून की मुश्तरका तदवीन की है। आप पूरे हिंदुस्तान में फ़आल तौर पर अदबी सरगर्मियों का हिस्सा रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो फारसी स्टडीज़ के सदर की हैसियत से आपने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में फ़ारसी उलूम के तलबा के लिए मुतादिद बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस और समर स्कूल्स का इनेकाद किया है। आपने कौमी और बैनुल अक़वामी तालीमी मैदानों में अपनी यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी की है, जहां आपने फ़ारसी ज़बान और अदब के इल्मी पहलुओं को पेश किया है। आपने एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस, JNU, कलकत्ता यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी में कई लेक्चर्स दिए हैं। आपके बैनुल अक़वामी जराइद के इदारती बोर्ड में शामिल होने से जैसे कि ईरान नामा और नियर ईस्ट और मशरक़ वस्ता का शोबा यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा, यहाँ पे आपकी शमूलियत है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप इस अहम मौजू पे अपने ख्यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया। मोहतरमा डॉक्टर नुसरत साहिबा, अराकीन जलसा, मैं मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी का बेहद ममनून व मशकूर हूँ कि मुझे इस वेबिनार में शिरकत करने का मौका मिला। मैं अपनी बात इकबाल के एक शेर से, जो बहुत आम शेर है, करना चाहता हूँ। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। हिंदुस्तान की तारीख का एक ज़र्रीन बाब अहद तैमूरिया है। इस अहद तैमूरिया के 4 बड़े बादशाह गुजरे हैं, बल्कि मैं कहूँगा उसमें 5 होना चाहिए था। बहरहाल 4 बड़े बादशाह गुजरे हैं। सबसे पहला बादशाह अकबर, उसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां और आखिर में औरंगजेब। मुवर्रिखीन इन्हें द ग्रेट मुगल्स के नाम से याद करते हैं। इन 4 बादशाहों का अपना एक मिजाज था, और उस मिजाज की अक्कासी उस जमाने के फनून लतीफ़ा में मिलता है। लेकिन दारा शिकोह द ग्रेट मुगल के नाम से मशहूर नहीं है। दारा शिकोह एक मुफक्किर है, एक फ़कीर है। एक मुफक्किर भी है और एक फ़कीर भी है, और उसके यहाँ वही चीज़ पाई जाती है जो, या वही रुझान पाया जाता है जो अकबर के यहाँ है। अकबर फ़लसफ़े में उसकी दिलचस्पी बरकरार है, वो फ़नून लतीफ़ा का गर्विदा है, हर तरह से फनकारों की मदद करता है।
दरवेशों से बेहद प्यार है उसे। कभी देखते हैं कि प्यादा वो सलीम चिश्ती के मज़ार पे जा रहा है। हिंदुस्तान से उसे इस कदर मोहब्बत है कि हिंदुस्तान के गूनागून शक्लों को वो अपने एक धागे से वो पिरो के रखना चाहता है। कसरत में वो वहदत पैदा करना चाहता है। यही चीज दारा शिकोह के अंदर भी हम देखते हैं बेदर्जे अतम मौजूद है। ये रुझान, इसीलिए वो अकबर सानी कहलाने का मुस्तहिक होता अगर वो बादशाह होता। लेकिन तारीख की सितम ज़रीफी देखिए कि उसके छोटे भाई औरंगजेब को बादशाह बनने का मौका मिलता है, जिसकी हुकूमत से हिंदुस्तान को बहुत हद तक नुकसान पहुंचा है। हम लोग किसी तरह का फनून लतीफ़ा को बढ़ते हुए या उसको आगे बढ़ते हुए नहीं देखते हैं। गुफ्तगू बैन तमद्दुनहा, जिसे आज की इस्तिलाह में हम कहते हैं डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन, ये डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन बिल्कुल खत्म हो चुका था। अगर दारा शिकोह औरंगजेब की जगह होता तो ज्यादातर इम्कान था कि डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन होता और अकबर सानी के वक्त में अकबर का दौर हमें उसकी याद ताजा हो जाती है। आपके भोपाल के एक मजल्ला निगार में कहा गया था कि साहब दारा शिकोह का एक दीवान है। पहली दफा ये मजल्ला कश्फ किया था कि दारा शिकोह का एक दीवान है जो अनकरीब छपने को है। बहरहाल उस दीवान के बारे में कहा जाता है, दीवान दारा शिकोह जो ईरान से गालिबन अभी छपा है, कहा जाता है कि वो वहदानियत का कान है उसके अंदर, यानी इट्स अ माइन ऑफ यूनिटी। खुदा की जात को अगर मुख्तलिफ जावियों से देखा जाए वो एक है, तो उसके दीवान में आप देख सकते हैं। तो उस दीवान का सिर्फ एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूं ताकि अपनी बात को मैं इस शेर से अपनी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि शेर बहुत खूबसूरत है, जिसमें कहता है हर खमो पेची के शुद अस्ताब जुल्फे यार शुद, दाम शुद तस्बीह शुद, जंजीर शुद, जुन्नार शुद। ये यार का जुल्फ है, वो एक ही जुल्फ है जो कभी दाम बन जाता है, कभी तस्बीह बन जाता है, कभी जंजीर बन जाता है, कभी जुन्नार बन जाता है। यानी दारा शिकोह का मकसद ये है कि मैं एक धागे से तमाम मज़ाहिब को बांधना चाहता हूँ। इनके अंदर एक डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन का रुझान पैदा करना चाहता हूँ ताकि हिंदुस्तान के अंदर जो कसीरुल मज़ाहिब और कसीरुल लिसान और कसीरुल अकायद मुल्क है, इसमें इत्तेहाद ही इत्तेहाद और तमद्दुन ही तमद्दुन और सकाफत ही सकाफत इंसान को देखने को मिले। गालिबन ये खत फिक्र उसके छोटे भाई औरंगजेब का नहीं था। बहरहाल दारा शिकोह को मैं जाती तौर पे द ग्रेट मुगल कहूंगा इस लिहाज से कि उसने दरवेशी को और फलसफे को इस कदर इख्तियार किया था कि सल्तनत को वो उस पे तरजीह नहीं देता है। कितना प्यारा शेर है उसका, जहां वो कहता है सल्तनत सहलस खुदरा आशना ये फक्र कुन। सल्तनत बहुत आसान है, लेकिन अपने आप को दरवेशी से आशना करो। कतरे ता दरिया तवानत शुद चिरा गोहर शबद। अगर कतरा दरिया बन सकता है तो वो क्यों गोहर बने। तो वो दारा शिकोह जिसकी ख्वाहिश ये थी कि दरिया को कतरा बनाए और उस दरिया के कतरे को, जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा विश्व बनाना चाहता है और जिसकी बुनियाद सल्तनत पे नहीं रखना चाहता है बल्कि दरवेशी पे रखना चाहता है, प्यार मोहब्बत पे रखना चाहता है, उखुवत पे रखना चाहता है। ऐसे गिरांबहा मोती को हम लोगों ने सामूगढ़ की जंग में खो दिए। इसका बेहद अफसोस है। शायद तारीख की सितम ज़रीफी थी। अगर दारा शिकोह बादशाह बनता तो गालिबन हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और होता। बहुत बहुत शुक्रिया।
जी बेशक, बहुत शुक्रिया अख्तर साहब। यकीनन आपकी गुफ्तगू से भी हमें इस्तेफादा करने वाले हैं। और जो आपने एक बात कही ग्रेट मुगल्स के हवाले से, तो जहाँ तक मेरा खुद का ज़ाती ख्याल है कि ग्रेट मुग़ल कहलाने से ज़्यादा बेहतर है एक अजीम मुफक्किर और अजीम फ़लसफ़ी, और एक ऐसा सूफ़ी और एक ऐसा इंसान कि जिसने हिंदुस्तानी फ़िक्र को, यहाँ के फ़लसफ़े को दूसरे मुल्कों तक भी पहुँचाया और वहाँ मुतारिफ कराया। बहुत शुक्रिया आपका। आमिर। जी बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह जो आपने बात रखी नुसरत साहिबा, मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ग्रेट मुगल कहलाने से बेहतर है कि आप एक मुफक्किर कहलाएं। और एक आइडियल मिलता है अफलातून प्लेटो की रिपब्लिक में कि वो एक फिलोसफर किंग का जिक्र करता है कि एक फलसफी बादशाह हो, और दैट इज द बेस्ट काइंड ऑफ किंग जो हो सकता है, जिसकी एक सोच भी है, अपनी एक फिक्र है, और उसके साथ साथ वो उसी तरीके से जो है वो रूल करता है। तो ये बात अख्तर साहब की बयान दारा की इल्मी और फिक्री तदाबीर पर रोशनी डाली। बेशक ये वो लोग थे जो अपना मोती हर धागे में पिरो सकते थे। मजहब को तकाबुल में देखकर दारा शिकोह ने उस वहदत की बात की जो हमारे इर्द गिर्द हर जगह नुमाया है। बहुत शुक्रिया। अब हम बात करते हैं डॉक्टर नरेश साहब से। मैं आपको मदऊ करना चाहूँगा और मैं उनका ज़रा सा तारुफ दे दूं कि वो किसी बहरहाल बहुत बड़ा नाम है। डॉक्टर नरेश चंडीगढ़ से हैं। आप पंजाब यूनिवर्सिटी के जदीद अदब के साबिक प्रोफेसर हैं, चंडीगढ़ एकेडमी ऑफ लेटर्स के चेयरमैन हैं, कई ज़बानें जानते हैं और इस सब के अलावा एक शायर और अदीब भी हैं। आपने अंग्रेज़ी, हिंदी और पंजाबी में 70 से भी ज़्यादा किताबें तसनीफ़ की हैं। अदब की खिदमत के लिए आपको मुतअद्दिद स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स और एजाज़ात मिल चुके हैं। आपने हमेशा इसकी कोशिश की है कि कुदरत के असरार को समझें और कायनाती निज़ाम को सराहें। हिंदुस्तानी फ़लसफ़े की वसी इल्म और ज़ाती तजुर्बात ने आपको रूहानियत की तबलीग की तरफ राग़िब किया, और बेशक इनसे बेहतर इंसान कौन हो सकता है दारा शिकोह के बारे में बात करने के लिए। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर नरेश साहब के ख्यालात दारा शिकोह पे। दारा शिकोह ऐसा बदनसीब शख्स था जो फकीर होते हुए बादशाह के घर में पैदा हो गया, और बादशाह भी उससे इसकी हद तक मोहब्बत करता था। वो उसका बड़ा बेटा था, मगर बादशाह की अफजू मोहब्बत ने उसे न मुकम्मल फकीर बनने दिया और न बादशाहत के लिए तैयार किया, न जंग के जौहर सिखाए, न इबादत की सही राह तलाश करके अपने बेटे को दी। ऐसी सूरत में जबकि रुझान उसका था ही रूहानियत की तरफ, तो वो जंगों में कामयाब कैसे हो सकता था। लिहाजा तख्त की एक ऐसी चाहत जिससे निजात हासिल करना औरंगजेब के लिए मुमकिन नहीं था, उसकी बदौलत दारा को जंग भी हारना पड़ी और जान भी देना पड़ी। दारा की मौत आज भी समझ में न आने वाली पहेली है। क्यों मारा गया दारा को? सिर्फ इसलिए कि अवाम में दारा की मकबूलियत बहुत थी और औरंगजेब को ये खदशा था कि कहीं कल किसी वक्त दारा और उसकी अवाम मिलकर उसका तख्ता न पलट जाए। सिर्फ एक खदशा, मगर न उसने दारा को समझा, न दारा की फिलॉसफी को समझा, न दारा के रुझान की पहचान की। हम क्यों याद करते हैं आज तक दारा को? क्योंकि दारा की सोच, दारा की फिक्र वो फिक्र है जो आज के हिंदुस्तान की बेहद जरूरी शय है।
वो हिंदुस्तान को एक सेकुलर हिंदुस्तान बनाना चाहता। अगर तख्त उसके हिस्से में आ गया होता तो यकीनन आज का हिंदुस्तान मुख्तलिफ होता। उसने तमाम मज़ाहिब की इज्जत करना सीखा जो इस्लाम सिखाता है। वो मुसलमान था, सादिक ईमान वाला मुसलमान था, मगर उसने ये देखने के लिए कि जिस मुल्क में हम आबाद हो चुके हैं, जिस मुल्क को हम फतेह कर चुके हैं, उस मुल्क की आवाम जो है, उनका जो मजहब है, उस मजहब को भी समझ तो लिया जाए और ये भी समझ लिया जाए कि आज तक हम दोनों हिंदू और मुसलमान सिरो शकर क्यों नहीं हो सके। दारा ने वेदों को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा और इन मुकद्दस हिंदुओं की मुकद्दस किताबों में से वो तमाम चीजें निकाली जो इस्लाम से मेल खाती हैं। मिसाल के तौर पर ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके बगैर तो इस्लाम ही नहीं है। अगर आपका कलमे पर ईमान नहीं है तो आप मुसलमान ही नहीं है। ऐसी सूरत में जब उसने वेदों में एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, परमात्मा एक है दूसरा कोई नहीं है, पढ़ा, और जब यजुर्वेद में उसने पढ़ा न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई शक्ल ही नहीं है, कोई सूरत नहीं है, जिसको निराकार तुम कहते हो वो निराकार ही है, तो उस निराकार को हमने अल्लाह कहा है। तो मैं जब काम कर रहा था इस मौजू पर तो मैंने एक बात कही कि ला इलाहा इल्लल्लाह में ला इलाहा पहला जो लफ्ज है वो दो लफ्ज हैं, ला और इला। तो ला तो हटा दीजिए आप, अंग्रेजी का दी है, तो इला रह गया। तो ये ऋग्वेद तो शुरू ही से होता है, ओम अग्नि मिले पुरोहितम, इला और अग्नि मेरे पुरोहित हैं, मेरे रहनुमा है इला। यजुर्वेद ने वाज़ेह कर दिया, नमस्ते इलामस्तु, मैं इला को सलाम करता हूँ, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई सूरत नहीं थी। तो हिंदुस्तान का हिंदू जो उस जमाने में था या आज के जमाने में है, आधा कलमा तो उसी के ईमान में पड़ा हुआ है। वो अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं भी मानता तो ला इलाहा इल्लल्लाह को तो मान ही रहा है। ये सोच जिन लफ्जों में मैं अर्ज कर रहा हूँ, इन लफ्जों में तो दारा ने नहीं की होगी, नहीं की है, लेकिन मकसद वही है। अब सवाल ये है कि दारा की ये फिक्र क्यों थी, किस लिए थी। मैंने अर्ज किया, दारा न मुकम्मल फकीर बन सका, न मुकम्मल तौर पर बादशाहत के लिए तैयार हो सका, लेकिन शाहजहां उसको वली अहद, उसके वली अहद होने का ऐलान कर चुका था। ऐसी सूरत में दारा शिकोह को यह था कि अगर कभी मैं बादशाह बना, अगर मुझे तख्त कभी मिला, तो मैं हिंदुस्तान इस तरह का बनाऊंगा कि यहाँ इस्लाम और हिंदू मजहब में कोई फर्क ना रहे, दोनों शीरो शकर होकर एक दूसरे के गले मिलें और मोहब्बत के साथ रहें। ये सोच चलते 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 हमारे आइन साजों तक पहुंची, और जब हमारा आइन बना तो हमने सेकुलर हिंदुस्तान बनाने का फैसला किया। इन हालात में आज जो कुछ हो रहा है, अगर गौर से देखा जाए तो इस फलसफे की जितनी तशहीर होनी चाहिए कम है, क्योंकि लोग अगर एक दूसरे को समझेंगे नहीं, एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करेंगे, नफरत की दीवारें खड़ी करते रहेंगे, तो पहुंचेंगे कहाँ। मुल्क तरक्की कब करेगा, कौम आगे कब बढ़ेगी, नुकसान ही नुकसान है। कि जितनी जल्दी हिंदुस्तानी अवाम समझ लें, नहीं तो फिर अल्लामा इकबाल ने कही दिया है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। इल्म की जुस्तजू में दारा साधु संतों, पीरों फकीरों से मिलता रहता था,
गुफ्तगू करता था, सवालात करता था, उनके जवाब उसकी तशफ़ी करते थे तो ठीक है, नहीं करते तो किसी दूसरे से पूछता था। मगर उसकी जो मुलाकात जमाने के संत बाबा लाल दयाल के साथ हुई, उसने उसकी जिंदगी का रुख बदल दिया और उसकी जुस्तजू को किसी हद तक मंजिल तक पहुंचा दिया। दिसंबर 1653 में 3 हफ्ते के लिए दारा शिको लाहौर में रहा था। इस असना में उसकी मुलाकात बाबा लाल से हुई पंडित चंद्रभान के घर पर। एक और मुरीद पंडित चंद्रभान का, जादव राय, वो भी मौजूद था वहां। जादव राय को दोनों की इल्मियत का इल्म था, लिहाजा दारा शिको और बाबा लाल में जो गुफ्तगू हुई वो बहुत तेज रफ्तार के साथ उसको नोट करता रहा और फिर उसने इस गुफ्तगू को नादिरुल निकात नाम की फारसी की किताब में शाया किया। वो हमारे पास मौजूद है, उसको पढ़िए, देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि दारा इस्लाम मुखालिफ नहीं था और उसको काफिर कहना, जो औरंगजेब ने कहा, उसको काफिर कहना तो उसके साथ इंतहाई नाइंसाफी करना है। काफिर कौन है? इस्लाम के मुताबिक काफिर वो है जो कुरान की बातों को झूठा कहता है। दारा ने तो कभी ऐसा नहीं किया। इस्लाम की या कुरान की किसी बात को उसने रद्द नहीं किया, कोई दलील पैदा नहीं की किसी आयत के खिलाफ या किसी सुन्नत के खिलाफ या किसी हदीस के खिलाफ। तो काफिर तो वो हरगिज हरगिज नहीं था। अब क्योंकि जवाब चाहिए किसी को कत्ल करने का, और जवाब भी ऐसा चाहिए जो हिंदुस्तान के मुसलमान आबादी को अच्छा लगे और उनकी समझ में आता हो। जब उसको काफिर कह दिया गया, कुफ्र का इल्जाम उस पर लगा दिया गया, तो उसके पीछे औरंगजेब की सोच यही थी। इन दोनों की गुफ्तगू को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दारा ने ये समझने की कोशिश की है बाबा लाल से कि हिंदुइज्म के या हिंदुओं की मुकद्दस किताबों में से औसाफ बताइए मुझे, आप क्या औसाफ होनी चाहिए एक इंसान के किसी मजहब के मुताबिक। और जो कुछ बाबा लाल ने बताया तो दारा ने कहा ये सब तो इस्लाम में है। आप इंसान से मोहब्बत करो, इंसानियत से मोहब्बत करो, नादारों मिस्कीनों की मदद करो, ज़ईफों की मदद करो, पैसे को अपने समाज में बांटो, सदका उतारो। ये सब तो कुरान कह रहे हैं, यही आपके उपनिषद कह रहे हैं। तो क्या फर्क क्या है दोनों में? क्यों हिंदुओं मुसलमानों को अलग समझा जाए? हाँ, एक तरीका है, जो इस्लाम पर ईमान ले आया है उसको इस्लाम के अहकामात जो हैं वो उनके मुताबिक रहना होगा। नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा, हज करेगा, ज़कात निकालेगा। इससे आपको क्या एतराज है? आप अगर ये समझते हैं कि खुदा एक है और वो निराकार है और उसकी कोई सूरत नहीं है, तो फिर आप जिस तरीके से भी चाहें उसकी पूजा करें, इबादत करें, आपको हक हासिल है। मगर ये कि दूसरा कोई आपके हिसाब से ही चले, ये सोच ही गलत है बुनियादी तौर पर। अब मैं हिंदुओं की बात कर लेता हूँ जरा। आप किसी हिंदू फैमिली को अगर जानते हो, करीब से देखिए, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, ऐसे कुनबे भी मिलेंगे जहाँ बाप वैष्णव है, माँ शाक्त है, बेटा राधा स्वामी है, बेटी आर्य समाजी है, तीसरा बेटा निरंकारी है, मगर कुनबा तो एक है और सब हिंदू हैं, हिंदुओं का कुनबा है। मगर हिंदू मजहब की जो अहकामात हैं, उन अहकामात से तो भटक चुके हैं लोग।
ना बेटा उनके हिसाब से चल रहा है, ना दूसरा बेटा, ना बेटी, ना बीवी, ना खुद वो। ऐसी सूरत में अगर, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, हिंदुइज्म इज नो इज्म, इट इज ए वे ऑफ लाइफ। मजहब नहीं है हिंदू, जिंदगी जीने का एक तरीका है। तो आप जिस तरीके से जीना चाहें जीते रहिए, मगर ये मजहब नहीं है। और मजहब क्या है ये आज तक हमने तय नहीं किया। मिसाल के तौर पर कोई शख्स गैर मुस्लिम मुसलमान बनना चाहता है तो सीधा है, उसको कलमा पढ़ना होगा, कलमे पर ईमान लाना होगा। अब कोई शख्स अगर हिंदू होना चाहता है तो वो क्या करे? वेद पढ़े, 4 उपनिषद पढ़े, कुरान पढ़े, गीता पढ़े, रामायण पढ़े, तब वो मजहब तब्दील कर सकता है। भाई इसमें तो उसकी जिंदगी निकल जाएगी। वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, ये तो इतना बड़ा जखीरा है, इसको पढ़ते पढ़ते ही जिंदगी गुजर जाएगी। तो ऐसी सूरत में, जबकि हिंदू मजहब जिसको कहते हैं वो हिंदू मजहब ही डिफाइंड नहीं है, जब तक उसके तौर तरीके ही डिफाइंड नहीं है तब तक ये इज़हार करना कि हमारा मजहब दुनिया के तमाम मज़ाहिब से बढ़िया है, तो मुझे लगता है दुरुस्त नहीं है। दारा एक हिसाब से सूफी था। मैंने कहा ना फकीर दारा। अब फकीर क्या? फकीर लफ्ज की तारीफ इसके 4 हरूफ में छुपी हुई है। फे से फाका, काफ से कनात, ये से याद इलाही, रे से रियाजत। ये 4 औसाफ जिसके पास हैं, जो इन 4 औसाफ की रोशनी में जिंदगी जीता है, सोचता है, वो सूफी है। सूफी समझता है कि इस इंसानी जिस्म के रहते हुए भी रियाजत के शानों पर परवाज करके खुदा के हुजूर पहुंचा जा सकता है। खुदा से एक रिश्ता कायम किया जा सकता है, जज्बाती रिश्ता कायम किया जा सकता है और उससे विसाल हो सकता है। और आखिरी विसाल तब होगा जब जिंदगी अपना दम तोड़ दे। आखिरी बात जब रूह जिस्म से निकल कर खुदा के हुजूर होगी तो फिर लौट कर जस्द खाकी में नहीं आएगी। ये सूफी का ख्याल है। यही वेदांत कहता है। वेदांत 2 लफ्जों को लेकर चला, आत्मा और परमात्मा। परमात्मा, प्राइम सोल, सबसे बड़ी सोल, सबसे बड़ी रूह खुदा है, और आत्मा आम रूह है। तो आम इंसान खुदा का पैदा किया हुआ आत्मा है, और जिसकी वो आत्मा प्रस्तिश कर रही है वो परम आत्मा है। मतलब आत्मा दोनों है, वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा है। तो दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि वो प्राइम सोल है, हम ऑर्डिनरी सोल्स हैं। तो प्राइम सोल के इख्तियार में जो कुछ है वो आम सोल के इख्तियार में हो ही नहीं सकता। खालिक वो है, मालिक वो है। तो इस सूरत में जब हम ये समझ लें कि हम उस रूह अजीम के हिस्से हैं, उसी की वजह से रूह हमारे अंदर है, तो फिर हम सब दुनिया के तमाम लोग एक दूसरे के भाई बहन हैं, एक जैसे इंसान हैं, एक जैसी मखलूक है। क्योंकि खुदा ने अगर मुझे अपने हिस्से में से निकाल के पैदा किया है तो सबको अपने हिस्से में से निकाल के पैदा किया है। तो पूरा आलम जो है वो मेरा अपना है, मेरा सगा है। मैं उनके साथ ज्यादती नहीं कर सकता, उनका इस्तेहसाल नहीं कर सकता, उनको परेशान नहीं कर सकता, उन पर जब्र नहीं कर सकता। ये तसव्वुफ ख्याल पेश करता है। ऐसी सूरत में दारा शिको ने, जिन हालात में दारा शिको का कत्ल हुआ
वो तो जाने दीजिए, जो है सो है, हो चुका। मगर दारा शिकोह ने जो फिक्र छोड़ी है, जो फलसफा छोड़ा है, उस फलसफे को आज, उस फलसफे की आज भी उतनी ही जरूरत है जितनी दारा शिकोह के जमाने में थी। दारा शिकोह को याद कीजिए, दारा शिकोह के फलसफे को समझिए, दारा शिकोह के सपनों का हिंदुस्तान बनाने की तरफ कदम बढ़ाइए। खुदा आपकी मदद करे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश साहब। हम सभी आपकी गुफ्तगू से बहुत महजूज होते हैं, इसलिए आज भी बहुत बेहतरीन आपने गुफ्तगू फरमाई। यकीनन आपने सूफीज़्म, वेदांत और इस्लाम के हवाले से इस बात की तरफ इशारा किया है कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तान। यकीनन समझने की ज़रूरत है। आगे आमिर। जी, डॉक्टर नरेश साहब की गुफ्तगू से मुझे ख्वाजा मीर दर्द का एक शेर याद आया कि जग में आकर इधर उधर देखा, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। तो वाकई उन्होंने जिस तरह कंपैरेटिव रिलीजन को एक तरह से बहुत ही कम अल्फाज में बयान किया, और हमारे देश में बहुत सारे मज़ाहिब जो हैं वो बसते हैं, और आपस में जो सुलह कुल की शुरुआत अकबर ने की थी और उसके बाद फिर दारा शिकोह ने इसको आगे बढ़ाया, तो ये विरसा जो है ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, आज की ज़रूरत है। सामीन और नाजरीन, वक्त आया चाहता है कि हम अपने आखिरी मुकर्रर की तरफ बढ़ें जो हमारे साथ यहाँ मौजूद भी हैं। मैं उनका तारुफ आपके सामने पेश करता चलूँ, हालांकि वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर सैयद तकी आब्दी साहब अहद हाजिर में उर्दू अदब का मोतबर नाम है। वो बैक वक्त डॉक्टर, कोहना मश्क शायर, नक्काद, मुहक्किक होने के साथ साथ मौजूदा अहद में रसाई अदब के माहिर हैं। आप दिल्ली में पैदा हुए, हैदराबाद से MBBS किया, बरतानिया से MS, अमेरिका से FCAP और कनाडा से FRCP। तहकीक और तनकीद में आपके कारनामे बहुत अहमियत के हामिल हैं। आपने जहां बहुत सी कुल्लियात की तरतीब व तदवीन का काम किया है, वहीं नहायत अहम मौज़ूआत पर तनकीदी मज़ामीन भी तहरीर किए हैं। आपने कुल्लियात गालिब, कुल्लियात अनीस, मसनवियात दबीर, रुबाइयात दबीर की तदवीन के अलावा इंशाअल्लाह खान इंशा पर एक अहम किताब मुरतब की है। फैज़ अहमद फैज़ से मुताल्लिक़ आपका बड़ा काम है। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपकी अब तक तकरीबन 40 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। आपकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में पूरी उर्दू दुनिया आपको कई अहम एजाज़ात और इनामात से नवाज चुकी है। मैं दावत कलाम देना चाहूँगा डॉक्टर सैयद तकी आब्दी साहब को कि अपने इल्म फ़हम से हमें नवाजें और हमसे बात करूँ। मैं आपको खुशामदीद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आमिर साहब। मैं सबसे पहले तो मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी की रूह रवां मोहतरमा डॉक्टर नुसरत मेहदी साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ, इस वजह से कि ये जो वेबिनार मुनक्किद हुआ और जिसमें हमने देखा कि आमिर साहब ने तो बहुत अच्छी आपके गुफ्तगू की, लेकिन हमारे जो पैनल में जो उलमा और जैसे डॉक्टर महताब आलम, जनाब अजीज खान साहब, डॉक्टर अख्तर हुसैन साहब और डॉक्टर नरेश और ख़ुद नुसरत मेहदी साहबा ने, ये चीज़ हमको जाननी चाहिए कि आजकल जो रिवाज है इंटरफेथ डायलॉग्स का, दारा शिकोह से पहले पूरी दुनिया में इसका वजूद नहीं है। मुनाजरे होते थे, मुनाजरे यानी तुम्हारे में क्या खराबी है मैं निकाल के बता रहा हूँ, मगर ये चीज़ नहीं थी कि तुम में क्या अच्छाई है, हमारी अच्छाई से जो मिलती है, जिसको आप इंटरफेथ डायलॉग कहते हैं। इंटरफेथ डायलॉग का पहला शब्द मुस्तनद दारा शिकोह, और ये भी
अजीब चीज है कि ये फख्र हासिल हुआ है सरजमीन हिंदुस्तान को। मैंने एक मर्तबा न्यूयॉर्क में कहा था कि आपके यूनाइटेड नेशन पर सादी का एक शेर लिखा है जिसके मानी ये है कि ये जो पूरी दुनिया में मखलूक है ये एक ही जिस्म के आज़ा हैं, यानी अगर एक को दर्द होगा तो पूरे बदन को नुकसान होगा, दर्द महसूस होगा। मैंने कहा लेकिन हमारी शुमा बख्ती देखिए कि सादी से 30 साल छोटे उम्र में खुसरो हैं, लेकिन खुसरो ने उससे बेहतरीन शेर कह दिया जो किताबों में रह गया। मेगू मर्द सद कुश्ताम दर नबर, मत कहे ऐ मर्द कि मैंने जंग में 100 लोगों को काट के फेंक दिया। यकी जिंदा कुन तात खानंद मर्द, एक मरते हुए को तो बचा ले तो मैं तुझे मर्द कहूंगा। तो मालूम ये हुआ मर्द वो है जो मरते हुए को बचाता है, मर्द वो है जो किसी की हेल्प करता है। ये तो हमारे पास ये जो मसाइल आए, गुफ्तगू जो हुई है मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन यहां पर यह बताना चाहता हूं कि दारा शिको वो शख्सियत है जो मुगल किसी, आपने देखा कि अगर हमने ये खूबसूरत तरीके की जो गुफ्तगू हुई है, यानी भक्ति और तसव्वुफ, ये दो धारों का मिलाप, मजमउल बहरैन, यानी ये दो धारे मिले हैं, वो इब्ने अरबी का फलसफे वहदत हो, या हमको अगर कदीम में जाकर, क्योंकि भक्ति का लफ्ज तो तकरीबन 2200 साल पुराना है, पानिनी के पास मिलता है भक्ति का लफ्ज, लेकिन वो भक्ति मार्ग पहली या दूसरी, या अब जो रामानंद से शुरू होकर रामानंद से होते हुए कबीर भक्त से होते हुए गुजरते हुए आगे जो बढ़ी है, तो सवाल अभी डॉक्टर नुसरत मेहदी ने उठाया कि लोग ये कह रहे हैं कि उर्दू एकेडमी को इस फारसी अदीब, इस फारसी शायर, इस फारसी फिलोसोफर से क्या आपके जो है रब्त। नहीं, ऐसा नहीं है। उर्दू उस जमाने में तकरीबन 625 साल से, यानी आप देखिए जो दक्कनी है और जो बाजारों में और जो अवाम की जबान थी, दरबारों में तो फारसी थी, बड़े बड़े लोगों के पास संस्कृत थी, लेकिन बाजारों में तो यकीनन इस पर काम नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटियों को चाहिए कि काम करें। यकीनन दारा शिको का ये जो फारसी का जो, क्योंकि मैं एक रेफरेंस देख रहा था कि रामानंद के दौर में लोग मौलवी की, मौलाना रूम की मसनवी पढ़ते थे बाजारों में, फारसी से वाकिफ थे। तो कह यह रह रहा हूं मैं कि उस जमाने की जो राइज भाषा हो या वो खदीम उर्दू हो, उससे संबंध है दारा शिको का। इसी वजह से जरूरत है, उर्दू ने हमेशा अपना दामन तर्जुमे से और फारसी से जोड़ रखा है। ये जो 250 साल बाद जब शागिर्द आए गालिब के, बिहारी लाल, तो उन्होंने कहा था हम हैं हिंदू तुम मुसलमान, दोनों बाहम एक हैं। जिस तरह आदाद जमना और जमजम एक, आप देख रहे हैं इन लोगों का इल्म देखिए, आदाद जमना को अब आदाद जमजम को मिलाएं तो एक है। अगर हम इस तरफ आगे बढ़े, अभी गुफ्तगू काफिर की हुई, नंदलाल सरहदी कहते हैं कि काबे में मुसलमान को कह देते हैं काफिर, बुतखाने में काफिर को भी काफिर नहीं कहते। देखा आपने, एक तर्ज है, एक गुफ्तगू है। दारा शिको की तसनीफात को तर्जुमा कर दिया गया है। डॉक्टर ताराचंद ने बहुत काम किया है, फारसी में तो बहुत उम्दा काम हुआ।
ईरान में जितना दारा शिको पर और अब भी जो यूरोप की जो बाज फारसी की जो अंजुमनें हैं काम कर रही हैं, तो अर्ज ये कर रहा हूं कि एक दरवाजा खोला है दारा शिको ने हमारे लिए कि हम दूसरे मजहब को समझ सके। कितनी खूबसूरती से डॉक्टर नरेश ने हमें समझाया। ये जो उनकी किताब आप देखें, मजमूल बहरैन हो या असरारे सिर्रे अकबर, उस आसान काम नहीं था। तमाम उपनिषदों को जमा कर कर उलमा को बनारस से और पूरी दुनिया से मिलाकर, पूरी हिंदुस्तान के मुल्कों से मिलाकर, जिलों से मिलाकर, शहरों से बुलाकर उसको फारसी में और उसके नुकात को पेश किया जाए। हमने बड़ी उम्दगी से हम हमेशा के दारा शिको को पूरी तरीके से समझा नहीं गया। उसकी वजह यह है कि दारा शिको के जो अहम जो मसाइल हैं उस पर जरूरत यह है काम है, मुजीब साहब का काम है और दूसरे आपके क्या कहते हैं निजामी साहब का काम है, मोहम्मद अली साहब का काम है। काम बहुत मिलेंगे। प्रोफेसर मुजीब कहते हैं दारा शिको में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जाहिर होती है। जिस समाजी पाबंदी की बुनियाद अकबर ने रखी थी, जिसने हुक्मरान तबके के लिए एक मुश्तरका बर्ताव के लिए एक आईन तैयार किया था, यही भाईचारेगी दारा शिको के उपनिषदों के तर्जुमे से जाहिर होती है। बड़े आदमी का जुमला है और बहुत सच कह रहा है। अगर आईन अकबरी और अबुल फजल ने महाभारत का तर्जुमा किया तो आगे चलकर उसी के वो जद था, परदादा था, तो आगे चलकर दारा शिको ने भगवत गीता और दूसरी किताबों का तर्जुमा किया। यानी दारा शिको सूफी जो थे, लेकिन ऐसे सूफी थे कि वो दूसरी जातों को मुत्तहिद करना चाहते थे। एक चीज अर्ज करता हूं कि जो हमारा सेक्युलर जो तमद्दुन और तहजीब है वो ओवरनाइट नहीं बना। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। हमारे पास तकरीबन 800 साल से कम ये भक्ति का जब से तीसरा दौर शुरू हुआ है, भक्ति मार्ग का, ये चीज चली है। लोगों को मुत्तहिद करने में जो कबीर ने काम किया है, कबीर दास, और कबीर दास के बाद आप देख रहे हैं कि उनके जो चेलों ने काम किया है उसको आगे बढ़ाया है। ये लोग जो आपने अभी गुफ्तगू किया अमर कि ये संतों के साथ, साधुओं के साथ, सूफियों के साथ, खानखाहों में, आश्रमों में ये जो अपना वक्त गुजारता था, ये शहजादा इन फकीरों के साथ रहकर, शहजादा कौन शहजादा? शाहजहां का बेटा, वो शाह जहां, उसका बेटा, वही वलिया है जो गुजारता था। तो उसने जो चीजें सीखी हैं उसने उसके लिए जिंदगी वक्फ कर दी। निकलसन क्या कहता है सुनिए। निकलसन कहता है कि तसव्वुफ हिंदुस्तानी या ईरानी तखय्युल की लाजमी पैदावार है। भगवत गीता और दीगर मजहबी किताबों की तालीम की बुनियाद पर जुनूब हिंद के जो ब्राह्मण अलवार और ओवार ने भक्ति का आगाज किया था, वो आगे चलकर फिर बताता है कि किस तरीके से दारा शिको ने उसको एक मुकाम तक पहुंचाया। तो लोग सिर्फ यहाँ पर इसी कोशिश में रह गए कि अगर दारा शिको बादशाह बनता तो क्या होता। मैं ये कह रहा हूं कि बादशाह ना अगर बनता तो दारा शिको उतना इस वक्त हाशिये की वजह से, जमाने का हाशिया बहुत खराब, दौरेवर लोग जो थे वो बदतर हो जाता। तो इस वजह से जरूरत इस चीज की है कि हम दारा शिको की तालीमात को समझे और दारा शिको के
काम को आगे बढ़ाएं। आदिल असीर ने बहुत कुछ काम किया है उनके रुबाइयात का तर्जुमा करके, और उन्होंने आपके जो है क्या कहते हैं दूसरी किताबें भी जमावरी कर कर आप जैसे जो आने वाले जवान हैं उन लोगों का काम है कि बस इसी चीज पर मैं आपके आदिल के एक जुमले पर खुद हमारे क्या कहते हैं उनकी किताब पर जो मुकदमा प्रोफेसर इराक जैदी ने लिखा है वो सुनिए, और उस पर मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं कि दारा शिको का अहम इल्मी कारनामा हिंदुस्तानी मजहब और तहजीब से मुताल्लिक़ संस्कृत की बाज़ बुनियादी किताबों के फारसी में तर्जुमे कराना है। उन्होंने 50 उपनिषदों का सिर अकबर के नाम से खुद फारसी तर्जुमा किया। जोग विशिष्ट का फारसी में तर्जुमा कराया जो रामारंज की किताब है। दारा शिको का असल मकसद ये था हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदू मजहब और तहजीब से रूशना हो, और इस तरह से वो गलत फहमियाँ जो इन दोनों मज़ाहब के बीरे में फैल गई हैं बाहमी मसालहत की फिजा पैदा हो। अभी 2 दिन पहले हमारे शहर से 60 किलोमीटर पर एक फैमिली को जो मुसलमान थी एक आपके जो है 20 साल जवान अपने ट्रक से कुचल देता है। आज क्या हुआ 3 घंटे पहले 4 घंटे पहले तकरीबन हजारों लोग जमा हुए। मुसलमान तो बहुत कम थे, वो ईसाई थे, वो सिख थे, वो हर यहूदी थे, वो सब जमा हुए और समाज जमा के कहा कि टॉलरेंस जरूरत है। वही चीज जो आज ये लोग प्रैक्टिकली देख रहे हैं, दारा शिको ने अपनी जान दे दी उसकी, और यही बताई जिसको आज जरूरत है कि हम एक दिन में तो एक बहुत बड़ा ताजमहल बना सकते हैं, लेकिन एक शख्स दारा शिको जैसा पैदा करने के लिए हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो इसकी दीदावरी को दुनिया में आम कीजिए। मैं डॉक्टर नुसरत मेहदी साहबा को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आपने एक बहुत बड़ा काम किया है। ये संघ जो आपने उठाया है मध्य प्रदेश एकेडमी, इसको मेहराब इश्क पर सजाए ताकि दुनिया इससे इस्तेफादा कर सके। बहुत बहुत बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया। यकीनन जो तसानीफ के जिक्र से और हवाले से आपके गुफ्तगू हुई है इसकी बेहद ज़रूरत थी, और आपने जो उर्दू से ताल्लुक़ इसका अपनी गुफ्तगू के दौरान हमें समझाया और बताया, हमें इसकी भी बड़ी ज़रूरत थी। तो यकीनन आपसे बात होती रहेगी। बेहद शुक्रिया जी। आमीन। बहुत शुक्रिया, ममनून जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई आपने। मुझे जाने क्यों इरफान सिद्दीकी साहब का एक शेर याद आया कि रात से जीत तो पाता नहीं लेकिन ये चिराग कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। तो सही है। बात यह है कि याद दारा शिको को अभी तक ऐसे ही किया जाता है कि वो औरंगजेब का भाई था और उससे हार गया, लेकिन आप देखिए मुझे महसूस होता है कि बहुत कम शहजादों को इस तरह याद किया जाता है कि वो हार गए। हारेयों को कोई इस शिकस्त जो पाता है तारीख में उसको कोई जगह नहीं दी जाती। तो दारा शिको का जो नाम है वो उसकी मिलिट्री स्किल्स या उसकी शहजादा होने की वजह से नहीं किया जाता, बल्कि उसको इसीलिए किया जाता है कि उसने एक ऐसा फलसफा दिया, उसने एक ऐसी बात रखी जो अभी तक जिंदा है, जो बहुत सही। जैसा अपने ज़माने की बात जैसा अभी आलिम साहब ने कहा कि दिलों को जो जीतता है वो फातेह यकीनन है। बिल्कुल, गद्दी पे बैठने वाला आपके जो है फातेह नहीं होता, दिलों का फातेह नहीं होता। बिल्कुल। मौलाना रूम ने कहा दिल बदस्तारत के हज अकबरस, दिल को जीत लो यही हज अकबर है। आज हजारे काबा एक दिल बेहतरस, हजारों तवाफ काबे के उससे एक दिल का तवाफ बेहतर है। तो मौलाना रूम ने 700 साल पहले यही कहा कि दिल बदस्तारत, तो दिलों को आपके और आपके क्या कहते हैं, आतिश लखनवी ने कहा था बुतखाना तोड़ डालिए मस्जिद को ढाइए, दिल को ना तोड़िए ये खुदा का मुकाम है। तो दिलों का यही आपके जो है दारा शिको का भी पैगाम है। बेशक बेशक बेशक। तो सभी मुकर्रिरीन ने न सिर्फ हमारे इल्म में मुअस्सर इजाफा किया बल्कि इस बात को बेहद वाज़ेह तौर पर आश्कार किया कि कई सदियों पहले जब एक शहजादा मार्के में मारा गया तो हम ये भूल गए कि उसने रूहानियत, फ़लसफ़ा और हमारी मुश्तरका तहजीब का अलम बुलंद करने में एक मुनफरिद
کردار ادا کیا ہے. کیا ہوتا اگر واقعی دارا تخت نشین ہو جاتا؟ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ وہ تخت نشین نہ بھی ہوا جب بھی ہم اس کو آج یاد کرتے ہیں. اور ہم طلبہ کے لیے بے شک یہ تحقیق کا موضوع ہے اور ہر عام انسان کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہم ایکا کو، یکجہتی کو، اتحاد کو کیسے، اخوت کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے. آخر میں ڈاکٹر نصرت مہدی صاحبہ جنہوں نے اس خوبصورت محفل کی شمع روشن کی، ان سے چاہوں گا کہ وہ ہم سب کی طرف سے ہمارے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں. بہت شکریہ عامر. سب سے پہلے بہت شکریہ ادا کرتی ہوں مدھیہ پردیش اردو اکادمی کی جانب سے، سنسکرتی وبھاگ کی جانب سے، جس کا یہ انیشیٹو ہے. یقیناً اردو اکادمی اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے جب تک حکومت، جب تک ہمارا جو محکمہ ہے وہ ہمیں اشارہ نہ دے کہ اس طرح کے پروگرامز منعقد کیے جائیں. تو میں سب سے پہلے تو اپنے محکمے کا اور اپنی حکومت کا شکریہ ادا کرتی ہوں. پھر آج کے اس ویبینار کی صدارت فرما رہے ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا خاص طور سے شکریہ ادا کروں گی. ڈاکٹر نریش صاحب جن کی گفتگو سن کے آنکھیں کھلتی ہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بہت دیر بولتے رہیں، ہم لوگ سنتے رہیں. ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پروفیسر اختر صاحب دلی سے ہمارے ساتھ تھے، ان کا بے حد شکریہ. عزیز عرفان صاحب اور ڈاکٹر مہتاب عالم صاحب. ڈاکٹر مہتاب عالم صاحب سے تو گزارش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ابھی جڑے رہیں اس طرح سے کہ ہم جب حکومت سے مطالبہ کریں کہ دارا شکوہ کو نصاب میں شامل ہونا چاہیے تو ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے اپنے چینل کے ساتھ رہیں. تو بہت شکریہ. اور عامر آپ کا بہت شکریہ، بہت خوبصورت آپ نے نظامت کی اور آج کی جو کنیکٹیویٹی تھی وہ کمال ہے. میری ٹیکنیکل ٹیم کا آج بہت شکریہ کہ کہیں کچھ پتہ نہیں ابھی مجھے کہ فیس بک وغیرہ پہ کچھ ہوا ہو تو اس کے لیے معذرت. دیکھیے ٹیکنیکلٹی پہ ہم لوگوں کا کوئی بس نہیں ہے، لیکن آج جہاں تک ہماری نالج میں ہے وہ سب کچھ ٹھیک چلا ہے، اچھا فلو چلا ہے. تو کہہ دیا تو نے کوئی ساجد کوئی مسجود ہے، عقل ہے محدود لیکن عشق لامحدود ہے. تو دارا شکوہ نے عقل کو خارج نہیں کیا لیکن عشق لامحدود کا راستہ انہوں نے اپنایا اور وہ عشق ظاہر ہے سارے ہمارے مقررین نے بہت ہی مؤثر انداز میں ہمارے سامنے بیان کیا. بے حد شکریہ. بہت شکریہ. چلیے سامعین، پھر ہماری ملاقات آج یہیں ختم ہوتی ہے. امید ہے آپ کو یہ ویبینار پسند آیا. اپنے فیڈ بیک اور جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں تو ہم تک ضرور پہنچائیے گا. ایم پی اردو اکیڈمی کی طرف سے دس از می سائننگ آف. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.